સૌથી પહેલાં કટારિયા તીર્થને પ્રણામ કરું, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને પ્રણામ કરું, પરમ પૂજ્ય આચાર્ય કલાપૂર્ણ મહારાજ સાહેબને પ્રણામ કરું, વંદન કરું અને 75 સાલમાં જે લોકોએ આ બોર્ડિંગમાં, આ વિદ્યાલયમાં જે યોગદાન દીધું છે એને નતમસ્તક થાઉં, સાથે વર્તમાન સમયમાં વર્ધમાન બોર્ડિંગ અને વિદ્યાલયના પ્રમુખશ્રી, મંત્રી અને બધા અમારા વડીલો, બુઝુર્ગો, દોસ્તો, ભાઈઓ और બહેનો, સૌથી પહેલાં મારા વતી અને મારા પરિવાર વતી આ અમૃત મહોત્સવની શુભકામના આપું. આના સાથે આ કમિટીને આભાર આપું કે જેણે અમને અવસર આપ્યો. જ્યારે સુરેશભાઈનો મને ફોન આવ્યો ત્યારે મેં પહેલાં તો ના પાડી, પણ એમના પ્રેમના લીધે અને આપના બધાના વ્યવહારના લીધે ના પાડી શક્યો. ના પાડવાનું કારણ બીજું કાંઈ નહોતું કે અમને ગુજરાતી બોલવામાં વધારે ફાવે નહીં, પણ સુરેશભાઈએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તમે હિન્દીમાં બોલશો તો ચાલશે. તો હું તમારાથી પૂછું છું कि मातृभाषा या राष्ट्रभाषा? ओके, थैंक यू. सबसे पहले मेरे को मजा आएगा. क्या हुआ कि हमसे कहा गया कि ऊपर से बोलिए, और हमने कहा हम ऊपर से बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे तो दूरियां ज़्यादा बनेगी, और मैं नहीं चाहता हमारे और आपके बीच ज़्यादा दूरी रहे. थोड़ी दूरी तो चल सकती है, ज़्यादा दूरी नहीं चाहिए. खैर कोई बात नहीं. और मुझे विषय दिया गया था नेत्र चिकित्सा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण विकास. આપણે હંમેશા ગ્રામીણ વિસ્તારની વાત કરીએ ત્યારે પહેલાં ગ્રામીણ ડેવલપમેન્ટ થાય, પછી આપણે સ્કૂલ ખોલશું, પછી આપણે હોસ્પિટલ ખોલશું, પછી આપણે, પણ આ જસ્ટ અપોઝિટ છે. પહેલાં આઈ કેર, પહેલાં આઈ હોસ્પિટલ, અને આઈ હોસ્પિટલથી ગામડાનો કેવી રીતે વિકાસ થયો હું તમને અમુક મિનિટોમાં બતાવીશ. નેક્સ્ટ વન. સૌથી પહેલાં પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ રણછોડદાસજી મહારાજ, એના અને મહારાજ સાથે તમને વાત કરીશ. હું જ્યારે 9 વર્ષનો હતો, 10 વર્ષનો હતો, સતનામાં એક આઈ કેમ્પ લાગ્યું, ત્યારે હું એમના પાસે જતો હતો. એ પ્રસાદ આપતા હતા, એ રોજ હું પ્રસાદ લેતો હતો. થઈ શકે છે કે એ પ્રસાદમાં કંઈક બીજો પ્રસાદ આવી ગયો, એ ચિત્રકૂટમાં મને ખીચી લઈ ગયા, મને ખબર નથી. અને જ્યારે સતના આવે ત્યારે હું એમને પ્રણામ કરવા જાઉં, નતમસ્તક થવા જાઉં. અને મને નાનપણથી ચિત્રકૂટ માટે ખૂબ, જ્યારે નાનો હતો ત્યારે એકલો એક બસ સવારે જાય ને પાછી આવે, તો હું ચિત્રકૂટ જતો અને ઘરમાંથી કોઈ ના પાડતા, પરિક્રમા કરું. મને એક વખત કેમ્પ લાગેલ હતો, બીજો કેમ્પ, અને ત્યારે લગભગ નહેરુજીની ડેથ પછી, નહેરુજીની ડેથ 27 મહિનાની થઈ, લગભગ 6 જૂન या 7 જૂનના. હું ત્યાં કને મંદાકની નદી છે, ત્યાં કને સ્વિમિંગ કરતો હતો. સ્વિમિંગ કરતાં કરતાં એમ લાગ્યું, હે ભગવાન, મને આ જગ્યા મળી જાય તો મને કેટલો આનંદ આવે. ખૂબ લૂ ચાલતી હતી, પણ ત્યારે મને ખબર નથી કે હું ડૉક્ટર બનીશ. મને ખબર નથી કે ચિત્રકૂટમાં કોઈ વખત હોસ્પિટલ આવશે, અને હું ડૉક્ટર બન્યો ચિત્રકૂટમાં. ત્યારે જ્યારે ડૉક્ટર બનીને આવ્યો ત્યારે ડિસ્પેન્સરી હતી, અને એ ડિસ્પેન્સરીમાં મને સમાચાર મળ્યા, અમારા સંબંધ હતા. એ લોકોએ કીધું તમે અમુક વર્ષ માટે અહીંયા આવી જાઓ તો અમારું કામ થઈ જાય. અને મેં ત્યારે જોઈન કર્યું. જોઈન કર્યા પછી 12 બેડની હોસ્પિટલ, 100 બેડની હોસ્પિટલ એ થઈ ગઈ. એક એવો સમય આવ્યો કે અમને ચિત્રકૂટ છોડવાની ઈચ્છા થઈ, અને એ ઈચ્છા એટલા માટે થઈ કે 2 છોકરાઓને ભણાવવાનું હતું. તો ક્યાં ભણાવીએ? તો એક વિચાર આવ્યો કે ગાંધીધામમાં નર્સિંગ હોમ ખોલશું, ગાંધીધામમાં હોસ્પિટલ ખોલશું, અને આઈ સર્જન તો હતો જ. એ વિચાર કરીને અમે ત્યાંથી નીકળ્યા, અને મોહનભાઈ સાથે વાત થઈ. મોહનભાઈ, મને ઇન્દોરમાં કોન્ફરન્સમાં આવું હતું, તો કે મહારાજ સાહેબ, આચાર્ય મહારાજ સાહેબનું ચોમાસું ઉજ્જૈનમાં છે, અને ઉજ્જૈનમાં તું વંદન કરીને પછી તું કોન્ફરન્સમાં જાજે. અને અમારે અહીંયા મોહનભાઈ જે કે એ અમને માનવું પડે. એના પહેલાં મેં આચાર્ય મહારાજ સાહેબના દર્શન નહોતા કર્યા, વંદન નહોતા કર્યા.
ફર્સ્ટ ટાઈમ હું ઉજ્જૈન ગયો. ઉજ્જૈનમાં મેં એમને દર્શન કર્યા. પહેલાં હું શરૂઆતમાં જ્યારે પહોંચ્યો તો આપણા આચાર્ય કલાપ્રભા મારા સાહેબથી વંદન કર્યા. પછી કંઈ તમે 10 મિનિટ બેસો અને આચાર્ય મારા સાહેબ આવશે. ત્યારે બધી વાત કરી, પૂછ્યું દાદી કેમ છે, બાપા કેમ છે, મા કેમ છે, બધા સમાચાર લીધા. એટલામાં પછી આચાર્ય મારા સાહેબ આવી ગયા અને આચાર્ય મારા સાહેબને એવું લાગ્યું એમને કે જે બધી બાબત મારી ખબર હતી એવું મને લાગ્યું. બધા સમાચાર લીધા. પછી કે હવે શું કરવાનો છો? મેં વાત કરી કે હું ગાંધીધામ જાઉં, જઈશ ને, આમ છે, આ છે. એક જ વાત કરી જે તમને કહેવાનું છે. એમણે કીધું તું એક સીડી ચડી ગયો છો, સીડી ચડવાની વાત કર, સીડી નીચે ઉતરવાની વાત ન કર. અત્યારે તું પ્રેક્ટિસ કરીશ તો લોકોના ખીચા જોઈશ અને અત્યારે દેવાવાળું કોઈ દે છે, લેવાવાળું કોઈ લે છે, તું ફક્ત નિમિત્ત માત્ર છો. એટલી વાત કરી. ત્યારે મારા દિમાગમાં એટલી વાત ગઈ નહીં. પછી આચાર્ય મારા સાહેબે જોઈ લીધું કે હજી વાત પૂરી થઈ નથી. એમણે કીધું, એક સુરાનાજી કરીને હતા ઉજ્જૈનમાં, એમને કે તું એને ચોવિયાર કરાવી આવો, પછી ડૉક્ટર તમે અહીંયા આવો, હું તમારી સાથે વાત કરી. પછી ગયો. મારી ઈચ્છા હતી મને ઇન્દોર જલ્દી જવું હતું, પણ એમને ના પાડી શક્યો. પછી આવ્યો અને આવ્યા પછી એમણે મને બધા વાત કીધું, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આ કરવાનું છે, આટલી બુક્સ લઈ આવવા. અને આચાર્ય કલાપ્રભા મારા સાહેબે કીધું કે તમે શું વાત કરો છો? ત્યાં કહીને ચિત્રકૂટમાં દેરાસર નથી, ચિત્રકૂટમાં સ્કૂલ નથી, આ છોકરાઓને શું સંસ્કાર આવશે? એમણે કીધું આ એમને રણછોડદાસજી મહારાજ છે એ બધું જ કરશે. આ આપણે જીવદયાની વાત કરીએ છીએ, એ માનવ સેવાની વાત કરીએ છીએ, એ બધું થઈ જશે. એ ચિત્રકૂટ નથી છોડવું. તે દિવસથી લઈને આજ સુધી ચિત્રકૂટ છોડવાની પછી ઈચ્છા નથી થઈ. એવા આચાર્ય મહારાજ સાહેબને અને ગુરુદેवને प्रणाम करूँ. नेक्स्ट वन. अभी ये परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज, इनका कहना है भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पूर्ण करेंगे, तुम सब निमित्त मात्र हो. उनका उद्देश्य था मानव सेवा और उनका लक्ष्य था भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और अंधे को रोशनी. नेक्स्ट वन. और जैसा कि ये 75वां साल अपन मना रहे हैं अमृत, इसी तरह सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ये 50वां साल हम लोग मना रहे हैं. और तारा नेत्रदान यज्ञ का इस बार 100वां साल है, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं. और गुरुदेव ने 1968 में अरविंद, अभी तक 1950 से कार्य चल रहा था, 68 में ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट की चेयरमैनशिप और लीडरशिप अरविंद भाई को दी. और अरविंद भाई ने उनके सूत्र को पकड़ लिया. उन्होंने कहा सबको अन्न, सबको आचरण, सबको अक्षर ज्ञान और सबको आरोग्य मिलना चाहिए. उसके कारण संस्था की गतिविधि आगे बढ़ी और परम पूज्य गुरुदेव ने चित्रकूट को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना. जैसा कि आप जानते हैं कि ये चित्रकूट की भूमि भगवान राम की तपोभूमि है. यहाँ पे भगवान राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे. नेक्स्ट वन. चित्रकूट भौगोलिक दृष्टि से भारत पिछड़े राज्यों के मध्य से बसा हुआ. जैसा कि आप जानते हैं ये बीमारू स्टेट के अंदर आता है और बीमारू स्टेट कितना पिछड़ापन है, खास करके ये बुंदेलखंड एरिया. और गुरुदेव ने क्या कहा, ये दरिद्र नारायण साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, इनकी सब प्रकार से सेवा कीजिए, उसी में ईश्वर के दर्शन होंगे. नेक्स्ट वन. और ये पहला आई कैंप चित्रकूट में प्रमोद वन में 1950 में लगा, जब पानी की, बिजली की, सड़क की कोई भी व्यवस्था नहीं थी. उस समय 950 ऑपरेशन हुए और आज हम लोग कहते हैं 1,40,000 ऑपरेशन हुए. उस समय कितनी बड़ी बात थी. आज उस समय जब हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे काफ़ी चुनौतियाँ थी. एक तो सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं थी, एफोर्डेबिलिटी नहीं थी, एसेसिबिलिटी भी नहीं थी और हमारा मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत बुरा था. और सबसे बड़ी बात, हम चित्रकूट को गांव कह रहे हैं, उस समय तो गांव नहीं, जंगल था, कोई बस्ती नहीं थी. तो आप हमारे स्टाफ को ठहराएं कैसे? डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, कोई टेक्निकल स्टाफ भी रुकने को तैयार नहीं था. और टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी और सस्टेनेबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी, कैसे फंड्स ले आएँ. तो ये सब, और साथ में सबसे बड़ी बात थी सीजनल इम्बेलेंस. उस नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, गर्मियों में ऑपरेशन कम होते, ठंडियों में ऑपरेशन ज़्यादा होते, तो उसको कैसे बैलेंस करना. नेक्स्ट वन. देखिए पहले, सबसे पहले वहाँ शुरुआत में सिर्फ डोनर डिपेंडेंट संस्था थी और आज सेल्फ सफिशिएंट है, सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे है. नेक्स्ट वन. और उस समय सिर्फ मैं एक आई सर्जन था
और बाहर से बॉम्बे से दूसरी जगह से डॉक्टर आते थे सर्जरी करने के लिए। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा बिग चैलेंज था। नेक्स्ट वन। और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र जहां आवागमन का भी सुलभ न हो, ऐसे स्थान चिन्हित कर सेवा का टीम सदगुरु, आप देख रहे हैं इस तरह के रोड, इस तरह की व्यवस्था उस समय भी थी और आज भी कई जगह ऐसी ही है। देखिए 8% सर्जरी गर्मी में और 92% सर्जरी विंटर में होती थी। ये भी हमारे लिए चैलेंज था। खर्चे खूब होते थे और 6 महीना कुछ काम नहीं रहता था। नेक्स्ट वन। विकास के लिए हमने जो प्रयास किए, आप देखिए तो कैसे शुरुआत की। बेस हॉस्पिटल बनाया और हर साल 3000 कैंप गाँव में लगते हैं। वो गांव में डॉक्टर की टीम जाती है, पेशेंटों को लेके आती है, ऑपरेशन करके पेशेंटों को गांव में छोड़ने जाती है और ये सब निःशुल्क होता है। और इसी के साथ विजन सेंटर, हर ब्लॉक के अंदर विजन सेंटर खोल दिया, जिससे हर पेशेंट को छोटी मोटी आँख की बीमारियों के लिए चित्रकूट आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी दुनिया का एक बेस्ट मॉडल है। नेक्स्ट वन। तो ये देखिए जहाँ पे हम लोग कैंप लगाने जाते हैं गांव-गांव में, तो हर साल 3000 कैंप लगा दें। नेक्स्ट वन। ये हर वर्ग के लिए सेवा उपलब्ध है। 85% जो सुविधा है वो या फ्री है या हाईली सब्सिडाइज है। तो जब 2006 में अब्दुल कलाम जी आए थे, चित्रकूट विजिट की थी, उनका जो प्रोग्राम था वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आधे घंटे का था, लेकिन उन्होंने 1.5 आवर वहाँ पर रहे और उन्होंने राउंड करते करते समय मुझसे एक चीज़ पूछी, डॉक्टर एवरीथिंग इज़ फाइन, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री एंड पेइंग? तो आई गिवन द आंसर, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मैंने ये जवाब दिया कि मुझे आपका रेलवे सिस्टम बहुत पसंद है। तो कहे क्या मतलब डॉक्टर? मैंने कहा आपका जो रेलवे सिस्टम है, नेवर आस्क यू व्हाट अबाउट द कॉस्ट, क्रीड, रिलीजन। रेलवे सिस्टम में आप जाते होंगे, फॉर्म भरते होंगे, तो क्या भरा जाता है? नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, और कुछ नहीं पूछा जाता। बाकी आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाइए, एजुकेशन में जाइए, इनकम टैक्स में जाइए, रेवेन्यू में जाइए, आपसे पूछा जाएगा कॉस्ट क्या है, क्रीड क्या है, रिलीजन क्या है। एक रेलवे सिस्टम नहीं पूछता। हमने कहा उसी तरह सदगुरु नेवर आस्क यू व्हाट अबाउट द कॉस्ट, क्रीड, रिलीजन, APL, BPL, SC, ST। वाई? मैंने कहा जस्ट लाइक इन रेलवे में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, सेकंड स्लीपर, फ्री बोगी होती है, लेकिन जनरल बोगी होती है, पर रेलवे में फ्री बोगी नहीं होती। और हमने कहा सदगुरु में 65% फ्री बेड रहते हैं और रेलवे में इंजन सेम होता है। उसी तरह हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर गरीब के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी एक होता है, और वहाँ पर ड्राइवर सबके लिए एक होता है। हमारे यहाँ सर्जन सबके लिए एक होता है। इस तरह की व्यवस्था रख दी। और उस समय 1950 के अंदर टेंट में ऑपरेशन होते थे। 2000 में ये 300 बेड की हॉस्पिटल बनी और अभी 2015 में ये नई हॉस्पिटल आई। इसका उद्घाटन 14 नवंबर 16 को राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट वन। और देखिए नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक सेवाधार, जैसा सुरेश भाई ने जरा अतिशयोक्ति बोल रहे थे, सिर्फ कोई 50 ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये 26 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। और दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल के अंदर 26 ऑपरेशन थिएटर नहीं है। और ये 26 ऑपरेशन थिएटर में चाहे मरीज गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, ऑपरेशन थिएटर सबके लिए वही होगा, सर्जन वही होगा। नेक्स्ट वन। बैक ये ऑपरेशन थिएटर का स्वरूप है। नेक्स्ट, ये अभी ISO सर्टिफाइड है और हम लोगों के यहाँ हॉस्पिटल के अंदर NABH और NABL का बहुत है। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास है। नेक्स्ट ईयर NABH और NABL भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वन। देखिए मरीजों का तो ठीक है, मरीज आया उसको एडमिट किया, उनके साथियों के लिए भी अलग अलग जाति, अलग अलग व्यवस्था है। फ्री के लिए फ्री, सब्सिडाइज के लिए, पेइंग के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। नेक्स्ट वन। और कार्यकर्ताओं के लिए पारिवारिक वातावरण। हम लोग कभी एम्प्लॉय नहीं बोलते, हमारे स्टाफ को हम लोग कभी एम्प्लॉय नहीं बोलते, हम बोलते हैं वॉलंटियर या कार्यकर्ता। नेक्स्ट वन। फोकस। अगर यदि
हम अगर उनका ख्याल करेंगे, अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा रहने को देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, मेडिकल एड देंगे, एजुकेशन एड देंगे, तभी तो कोई व्यक्ति, डॉक्टर या स्टाफ या हमारा वॉलंटियर रूरल एरिया में रह सकता है। तो 1974 में सिर्फ एक आई सर्जन थे, वो तो आप जानते हैं कौन था। और अगर यदि आप अपने कार्यकर्ताओं को सोशल सिक्योरिटी दीजिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए, प्रोफेशनल सिक्योरिटी दीजिए, और आज 2017 में 80 से ज़्यादा आई सर्जन हॉस्पिटल में, एक गांव में जिसकी बस्ती सिर्फ 18 गांव के मिला के 25,000 है, वहाँ पे 80 आई सर्जन और 20 जनरल डॉक्टर, 100 डॉक्टर से ज़्यादा हैं। ये और कार्यक्रम जो पारिवारिक माहौल पैदा करते हैं और सेवा भाव बताते हैं। गुरुदेव का एम क्या था, हमारी कल्चर क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, उससे न भटक जाएं, हम बढ़ते जाएं और कहीं हम अपनी कोर वैल्यू भूल गए, हमारा कल्चर भूल गए तो बात बनेगी नहीं। इसलिए और हमारी इम्प्रूव द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ सकती है, उसकी भी हम लोग सोच रखते हैं। इसके लिए सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने एक तो ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है, हर साल 4 डॉक्टर को DNB प्राप्त होती है, जिसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट MS बोलते हैं आई में। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने इस संस्था को रिकॉग्नाइज किया, इसलिए विदेश के डॉक्टर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जो इंडिया के जो डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो अलग, और विदेश से, क्योंकि जो सबसे बड़ी वर्ल्ड में एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, उसने इस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया और इसके लिए ये इंस्टीट्यूट काम कर रही है। नेक्स्ट वन, ये देखिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर एडवांस वेट लैब, 3D थिएटर, एनिमेशन लैब और रिसर्च लेबोरेटरी बनी हुई है। नेक्स्ट, जिसको जो अभी हमारे पास फॉरेन से जो डॉक्टर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, 5 देश से ट्रेनिंग के लिए आ गए, अफ्रीका, चाइना, अदर कंट्रीज, और अभी तक 298 आई सर्जन को ट्रेनिंग दे चुकी है ये संस्था, और साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 134 लोगों को दे चुकी है। और जो इंटरनेशनल कैंडिडेट 15-16 में 6 आए थे, और लास्ट ईयर 9 इंटरनेशनल कैंडिडेट ने ट्रेनिंग ली। ये देखिए, पहले हम लोग टेंट में काम करते थे और अब हाई वॉल्यूम सेंटर, ब्लैक एंड वाइट से कलर में आ गए। और अगर यदि नंबर की बात करें, क्योंकि आप लोग बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, तो पहले नंबर चाहेंगे। नंबर, तो नंबर में आप देखेंगे, आंकड़ों के साथ खेलेंगे, तो 2002 में सिर्फ 97,000 पेशेंट OPD में आते थे, और लास्ट ईयर 8,57,000 लोगों ने लाभ लिया। इसी के साथ नेक्स्ट वन, सर्जरी की बात करें तो सिर्फ 2002 में सिर्फ 29,000 सर्जरी हो रही थी, और लास्ट ईयर 1,29,000 सर्जरी हुई है। और अगर यदि मैं कैटरेक्ट की बात करूं, सिर्फ मोतियाबिंद की बात करूं, तो 2003 में सिर्फ 21,000 सर्जरी थी, और लास्ट ईयर लगभग 5 साल से अगर आप देखें 1 लाख से ज़्यादा सर्जरी कोई अगर दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट करती है तो वो सिर्फ चित्रकूट कर रही है। We are the first hospital in India perform more than 100,000 cataract surgery in particular financial year, consecutive 5 years. Next, और एक बात करनी थी, मोतियाबिंद को बैकलॉग मिटाने का अभूतपूर्व प्रयास चित्रकूट ने किया, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने किया, और ये प्रयास था कि गांव में हर घर में जाके मोतियाबिंद के मरीज को चिन्हित कर उसको बाहर निकालना, उसको चित्रकूट ले आना, ऑपरेशन करके छोड़ाना, ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम किया। नेक्स्ट वन, तो उपलब्धि क्या हुई, 3 साल के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट को कैटरेक्ट बैकलॉग फ्री जोन घोषित किया, 80 लाख पॉपुलेशन में काम किया, 13 लाख पेशेंटों को देखा, और सर्जरी उतने में 75,000 सर्जरी हुई, अदर कैटरेक्ट की अदर सर्जरी 11,000 हुई। इस तरह से 86,000 सर्जरी 3 साल में सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया। तो और दूसरा भी है कि सिर्फ हम लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी अस्पताल को भी कैपेसिटी बिल्डिंग में, विजन बिल्डिंग में लेके ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने लोगों ने सीतापुर आई हॉस्पिटल का नाम सुना, हाथ ऊपर करें। बहुत कम लोगों ने। सीतापुर आई हॉस्पिटल, તમે શું સીતાપુર માટે શું જાણો છો? આજથી 30 વર્ષ પહેલાં જ્યારે ગુજરાતની અંદર આંખના
ઓપરેશનો અને આંખની સારવાર દુર્લભ જણાતી હતી ત્યારે લોકો અહીંથી સીતાપુર જતા હતા એવું નાનપણમાં સાંભળેલું હતું. લેજનભાઈ બિલકુલ સાચી વાત કરી. આજથી 40 વર્ષ પહેલાં કોઈ પણ, ચાહે ગુજરાત હોય, બોમ્બે હોય, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા या એશિયાના કોઈ પણ કન્ટ્રીમાંથી કોઈને આંખની પ્રોબ્લેમ આવે તો सीतापुर आई हॉस्पिटल, नेहरू जी ने प्रॉब्लम आवे तो सीतापुर हाई हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी जी ने प्रॉब्लम आवे तो सीतापुर, टाटा ने प्रॉब्लम आवे, बिरला, मफतलाल, कोई ने भी બધા सी. પણ ધીરે ધીરે કરીને જેવી રીતે ધીરુભાઈએ વાત કરી કોલેસ્ટ્રોલ, આપણે હોસ્પિટલને કેપેસિટી બિલ્ડિંગમાં લીધું. 10 વર્ષમાં જૂનું सीतापुर आई हॉस्पिटल પછીથી બની જશે. એના સાથે મધ્યપ્રદેશની અંદર સેવા સદન, મુઝફ્ફરપુર, ગોમાબાઈ, સદગુરુ સંકલ્પ, એવી બધી હોસ્પિટલને આપણે કેપેસિટી બિલ્ડિંગમાં લીધી છે. આજે 4000 સર્જરી કરે છે. આપણે એ લોકોને કેવી રીતે 35 થી 40,000 સર્જરી ક્વોલિટી સાથે, લો કોસ્ટ સાથે, સસ્ટેનેબિલિટી પિક્ચર બતાવી. નેક્સ્ટ વન, આ બધા નેક્સ્ટ વન, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन. मैं जो आपको जो मैंने बताया था बैकलॉग की बात, जो हम लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट में किया, ये बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच गई, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास. और उन्होंने भी संकल्प लिया कि पूरे भारतवर्ष को कैटरेक्ट बैकलॉग मुक्त करने का प्रयास करेंगे. और उसके लिए उन्होंने 700 करोड़ का बजट भी रखा है. और 2022 तक भारत सरकार प्रयास करेगी चित्रकूट को मॉडल बनाने की. नेक्स्ट वन. तो सिर्फ हम लोग आई का काम में कैटरेक्ट का नहीं कर रहे हैं, सभी ब्रांच, चाहे वो रेटिना की बात हो, ऑक्यूलोप्लास्टी की बात हो, कॉर्निया की बात हो, सभी काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वन. ये मैंने बताया MP UP के अंदर 39 विजन सेंटर है. नेक्स्ट वन. ये आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोग कंपेयर करते हैं, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका कैसे, हम कहाँ पे. तो हम लोग भी कभी कभी आप लोगों से सीख लेते हैं और आप लोग जैसा भी हम लोग भी करते हैं. नेक्स्ट वन. ये देखिए आप लोगों ने बैक कर, बैक, आप लोगों ने और भी बैक बैक. अभी इंडिया के अंदर आई हॉस्पिटल कौन कौन सी बेस्ट है? शंकर नेत्रालय, यस, एक. दूसरी अरविंद आई केयर मदुरई, थर्ड वन LV प्रसाद हैदराबाद. ये 3 इंस्टीट्यूट, तीनों साउथ में, कोई सेंट्रल इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में नहीं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट. ये देखिए अरविंद, शंकर नेत्रालय, LV प्रसाद और सदगुरु. जहाँ पे आउट पेशेंट हैं, अरविंद में सबसे ज़्यादा 10 लाख, तो दूसरे नंबर में सदगुरु चित्रकूट है. सर्जरी की अगर बात करें तो 1,45,000 एज ए सिंगल इंस्टीट्यूट मदुरई में होता है और चित्रकूट में 1,43,700 सर्जरी. सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. एंड इफ यू आस्क मी इन द कैटरेक्ट, दिस इज द अरविंद इज द 96,000 एंड शंकर नेत्रालय सिर्फ 36,000 और सदगुरु 1,70,000, फर्स्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. और रेटिना में भी अगर आप देखें, शंकर नेत्रालय 6,400, LV प्रसाद 6,700 और चित्रकूट 6,400. सेम थिंग हैपन विद द कॉर्निया, मैक्सिमम इज द 5,700. ऑक्यूलोप्लास्टी फर्स्ट इन द इंडिया एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड 7,465. नेक्स्ट वन. ये चित्रकूट अंचल का हमने आई की बात की. थोड़ी हम चलते हैं जनरल हॉस्पिटल में. जनरल, नेक्स्ट वन. और जनरल हॉस्पिटल के अंदर भी डेंटल, ENT, जनरल सर्जरी, गायनी ऑब्स्टेटिक, सब कुछ वहाँ पे हो रहा है. नेक्स्ट वन. और जैसा कि सुरेश भाई ने अभी उषा की बात की, और ये जबकि ये उषा का विषय था, मैं कर रहा हूँ, ये उषा के अंडर में इतनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं. हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, संस्कृत कॉलेज, संगीत कॉलेज. नेक्स्ट वन. ये देखिए चेयरमैन ऑफ द सदगुरु एजुकेशन सोसाइटी मिसेस उषा जैन. नेक्स्ट वन. ये देखिए ये संस्कृत विद्यालय इनके अंडर में है और ये कॉलेज है. इसमें 265 बच्चे हैं और 100% रिजल्ट
5 साल से रेगुलर आ रहा है। नेक्स्ट वन। और इसके अंदर आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 20 लोग मेरिट में आए, उसमें से 17 लोग सिर्फ चित्रकूट की राम संस्कृत महाविद्यालय जिसकी उषा प्रेसिडेंट है, उसमें 17 लोग सिर्फ चित्रकूट के मेरिट में आए। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई इनकी। इसी तरह संस्कृत विद्यालय में 215 बच्चे, हिंदी मीडियम में 915, हायर सेकेंडरी में 335, इंग्लिश मीडियम में 1222, स्कूल ऑफ नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड कंप्यूटर कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग, और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने आज बात की थी स्किल डेवलपमेंट। वो किसी को सीखना हो, देखना हो तो कभी भी चित्रकूट आ सकते हैं। कम्युनिटी कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, एवरीथिंग। नेक्स्ट ये देख, ये जैसा कि सुरेश भाई ने बताया था कि इन्होंने 5,000 रुपये की शेयर कैपिटल से चालू किया था। लास्ट ईयर 3 करोड़ के टर्नओवर किया इन्होंने। नेक्स्ट वन। और ये गौशाला है, यहाँ पे 1215 गाय हैं निराश्रित। जो गाय दूध नहीं देती उसको ये पांजरापोड़ में छोड़ के गांव के लोग जाते हैं, उसकी सेवा। नेक्स्ट वन। और गौपालन में भी काफ़ी 200 गाय हैं, 201 2 लाख लीटर दूध पैदा होता है। नेक्स्ट वन। ये हमारा एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन। दिस इज द ओनली, ये आप जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट वन। ये देखिए आइसबर्ग का एक छोटा सा पीस दिख रहा है, इसके पीछे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है वो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट। ये देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा ड्राइवर है। ये जब मैंने ज्वाइन किया था 74 में, इसने भी ज्वाइन किया था ऊषा के आने से पहले, अगर ये कहूँ। ऐसे कई लोग थे, तो उसने यहाँ पे ड्राइवर का काम कर रहा है। अब आप देखिए कैसे फैमिली का अपग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट वन। ये 74, ये नेक्स्ट वन। ये उसकी वाइफ है, वो ऊषा के महिला समिति में काम करती है। ये बड़ा बेटा है, ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कंपाउंडर का और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। वो लड़की है, वो नर्सिंग स्टाफ में काम कर। नेक्स्ट। और दूसरी लड़की है, वो नर्सिंग स्टूडेंट। एक परिवार पूरा संस्था में है और उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे सैकड़ों परिवार पल रहे हैं, सैकड़ों परिवार। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है इसको। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने शांति से सुना। और दूसरा, मेरे ऊपर जहाँ गुरुदेव का प्रभाव, आचार्य महाराज साहब का हमारा ऊपर आशीर्वाद, उसी तरह मेरी दादी का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे पिताश्री का कर्म योग प्राप्त हुआ, मेरी माँ का भक्ति योग प्राप्त हुआ, मेरे सभी भाई मोहन भाई, रवि भाई, मुक्ति भाई, चंदू भाई, भोगी भाई, इन सब का मुझे वात्सल्य, मेरी भाभी जया भाभी, लीलावंती भाभी, रमीला भाभी, चंदन भाभी, सबका मुझे सहयोग। और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अगर सहयोग प्राप्त हुआ, जैसे सुरेश भाई ने कहा, वो मेरी धर्मपत्नी उषा का, अगर वो न होती तो ये मैं कार्य नहीं कर सकता था। और मेरे पुत्रवधुओं ने मुझे सहयोग दिया, इसलिए मैं चित्रकूट में रह सका। और आप सबका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त था, तभी हो सका। फिर से आप सबको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय जिलेंद्र।